Hello everyone, welcome to the third lecture of chemical reactions and equations. In the previous two videos, we have studied chemical reactions, okay? And we have also studied that how to represent a chemical reactions. In shorter word, chemical equations. We have also studied about the balancing part and what is remaining now. In this video, we are going to start the types of chemical reaction, and hopefully in this video or maybe one more video, in the more video we will complete the types of chemical reaction. So now let's see what we are going to study today and what is the remaining topic in this chapter. So students, in this video we are going to start types of chemical reactions. Okay, so to understand the types of chemical reactions properly, I have divided all the reactions on the basis of two categories. The first one is based on types of chemical reactions based on energy flow, and the second type is based on the processes. Okay, the processes. Now, what are the types of chemical reactions based on energy flow? The first one is an exothermic reaction. The second one is endothermic reaction. Okay. Now, what are the types based on the processes? Like first one is combination reactions. Second one is decomposition reaction. The third is displacement reactions. The fourth one is double displacement reactions. Fifth one is oxidation and reduction reactions. So we have to study about these reactions, and in this video hopefully we are going to study till decomposition reactions. We are going to study exothermic, endothermic, combination and decomposition reactions, and if the time permits then we will also start displacement reactions. Otherwise I will make a second part of the same topic and we will cover the remaining reactions in that topic. Since we have to understand all the reactions properly, that's why we need to devote some time to understand these reactions, because these reactions, the chemical reaction, types of chemical reaction topic will make the base of your chemistry, and we will learn a lot of things which are very interesting. So chemistry is a colorful world. Okay, you will realize that while studying these reactions. So now let's start our first topic. So based on the energy flow, the chemical reactions can be divided in two categories. The first one is exothermic, the second one is endothermic. Okay. So now let us study that what is exothermic reaction. So note down those chemical reactions in which heat oblique energy is released. So those chemical reactions in which heat oblique energy is released during the process are called exothermic reactions. Okay. So I hope it is clear, very easy to understand. बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर कोई रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है एंड उस रिएक्शन प्रोसेस के दौरान अगर हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर कोई बच्चे हीट लिख देते हैं तो वो बहुत ही एक सेंट्रिक वे में हो जाएगा, एंड एनर्जी टर्म का यूज करना एक ब्रॉडर सेंस में देखा जाएगा, सिंस हीट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, सो बोथ टर्म कैन बी यूज्ड हियर इन द डेफिनेशन process, but you have to remember these things, that heat is being released during the process, then the reaction will be known as exothermic reaction. So let us see some example. I have used a lot of example in the previous videos. Can you recall one? Let's say the example of exothermic reaction will be zinc. I have used this one, I believe 3 to 4 times till now. Zinc react with H2SO4. Okay, and what is formed? ZnSO4 plus hydrogen gas. Evolution takes place in this reaction, plus heat is also released. So it's a type of exothermic reaction. But just have a look here. क्या हमने इस रिएक्शन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया है क्या? नहीं. So we are going to represent states. Zinc will be in the solid form,
H2SO4 will be dissolved in water. So aqueous जो जिंक सल्फेट बनेगा वो भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी डिजॉल्व इन द वाटर. हाइड्रोजन इसका तो शो कर दिया, ये तो भाई उड़ जाएगा, ठीक है. एंड हीट विल बी रिलीज्ड, प्लस साइन शोज दैट इन द प्रोडक्ट साइड हीट विल बी रिलीज्ड. ओके, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल, that reaction with the magnesium ribbon case we have studied in the first video. Just try to recall. Magnesium reacts with oxygen and oxygen comes from air. Okay, so oxygen comes from air, and so magnesium reacts with air and forms magnesium oxide, white powder. In the last video you have learned that how to represent a reaction properly, so use that concept so that the representation should be good of the reaction. Okay, so the magnesium oxide will be in the solid form since it's powder, but also it's in solid form. Oxygen in the gaseous form, and magnesium initially it's in solid form. Okay, so along with these, I have told you that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and with a lot of heat. Okay, so heat is also released during this reaction. Now, some students might get confused that to burn this magnesium ribbon, we use the spirit lamp to provide the heat. So why not it is an endothermic reaction, and why I am saying that this is an exothermic reaction? So जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप एक टर्म पढ़ोगे, एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, और या फिर सिर्फ फ्लेम टेम्परेचर. सो बेसिकली क्या होता है, फ्लेम टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है, हीट रिक्वायर्ड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए घरों में या फिर गांव में जब आप लकड़ी जलाते हो तो फिर आपको उसे थोड़ी चिंगारी देनी होती है. वो चिंगारी क्या काम करता है, वो बेसिकली वो एक्स्ट्रा हीट देता है. उसके बाद एक बार जब लकड़ी में आग पकड़ लिया, रिएक्शन शुरू हो गया, तो फिर हीट जो है अपने आप इतना जनरेट हो जाता है जो कि उस प्रोसेस को, जलने वाले प्रोसेस को कंटिन्यू करता है. ठीक है, सो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है यहाँ पर इस केस में स्पिरिट लैम्प के द्वारा, जो कि मैग्नीशियम रिबन को, जो ये बर्निंग प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है. ये जो टेम्परेचर है इसको बोलते हैं फ्लेम टेम्परेचर. इट मीन्स द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस विच कैचेस द फ्लेम, ओके, द फायर बिगिंस. समझ रहे हो? लेकिन क्या होता है, जब एक बार ये बर्निंग प्रोसेस शुरू हो गया, उसके बाद क्या है, हीट जनरेट होता है, और यही हीट जो है उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है. ठीक है, सो इट्स अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ व्हाट विल बी द अदर एग्जांपल? अदर एग्जांपल क्या ले सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं, कार्बन कंपाउंड लेट्स से मीथेन, वेरी बेसिक कंपाउंड मीथेन, burns in the presence of O2, which is in the gaseous form. Methane is also gas. ठीक है, when methane reacts with oxygen, what is formed? Carbon compound when reacts with oxygen forms carbon dioxide gas along with water, which will be in the liquid form plus heat. Now one thing to note here is that हीट जो है इस वाटर को बाद में, ये जो वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, बाद में हीट एब्जॉर्ब करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये भाप में उड़ जाएगा. समझ रहे हो? लेकिन हम यहाँ पर गैस शो नहीं करके लिक्विड शो करेंगे. क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हमें वही दिखाना होता है जो कि प्रोड्यूस हुआ है, ना कि बाद में कुछ और प्रोसेस होकर के चेंज हो गया हो. हमें वो नहीं दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि क्या प्रोड्यूस हुआ है. सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, H2O इन द लिक्विड फॉर्म ये प्रोड्यूस होगा, एंड हीट एनर्जी भी रिलीज होगी. सो इट्स अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको 1 नंबर या फिर 2 नंबर के सवाल में ये पूछा जा सकता है. What is that? Respiration. Respiration is also an example of the exothermic reaction. Okay. Now, what is the chemical reaction for respiration? Let's see. So, during the respiration process, क्या होता है? C6H12O6. It's glucose. So, जो भी हम खाना खाते हैं,
जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ये हमारे पेट में स्टोर्ड होता है। सो ये भी क्या होगा, डिजॉल्व इन द वाटर, एक्वस फॉर्म में होगा। एंड ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ये कहां से आता है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग आवर ब्रीदिंग, ये ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है एंड इट्स अ कार्बन कंपाउंड। ओके, सो कोई भी कार्बन कंपाउंड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, CO2। ये भी गैसियस फॉर्म में रिलीज होगा, जो कि हम ब्रीद आउट करते हैं। ऑक्सीजन ब्रीद इन ले करते हैं एंड CO2 ब्रीद आउट करते हैं। एंड along with this water will be formed, which will be in the obviously liquid state, and with this energy is also produced, ठीक है, जिससे कि हम अपना सारा काम कर पाते हैं। समझ रहे हो? सो रिएक्शन क्लियरली समझ में आया, दैट ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर along with एनर्जी। सो ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन है यही बताता है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, यही बताता है कि रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। आपको आंसर मारना है एक्सोथर्मिक। एंड ये रिएक्शन लिखने को भी कहा जा सकता है, सो आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान रखने का तरीका आपको बता दिया, कार्बन कंपाउंड है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। क्लियर है? सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, राइट डाउन, आप इसे नोट कर लीजिए। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट ऑब्लिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि एक्सोथर्मिक के उल्टा यहां पर हो रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इस केस में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में हीट या ऑब्लिक एनर्जी जो है, हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना है। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस इट्स एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे, ये हम अभी देखने वाले हैं। सो द रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग करने के लिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, विच इज इन द गैसियस फॉर्म, रिएक्ट्स विथ वाटर, जो कि जमीन से ये अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो वाटर कहां से आता है, जमीन से ये ऑब्जर्व करते हैं, along with in the presence of sunlight, okay, in the presence of chlorophyll, in the presence of chlorophyll, okay, in the presence of chlorophyll, and क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, एंड ऑक्सीजन 6O2 इन दी गैसियस फॉर्म। ग्लूकोज किस में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। H2O का बता दिया, ये भी बता दिया। ओके, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये यहाँ पे 6। ओके, सो नाउ दिस इज द रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सनलाइट यानी कि लाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एब्जॉर्ब हो रहा है। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अदर एग्जांपल क्या ले सकते हैं, दैट जब लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हेन हीटेड, जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या होगा, ये क्विक लाइम बनाएगा विच इज इन द सॉलिड फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। समझ रहे हो, यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसे कहते हैं क्विक लाइम, इसे कहते हैं लाइमस्टोन। आपको याद रखना है, व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। मार्केट में इसे यही कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में। एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस which is released during this process.
So now let's see one more example, uh, that when hydrogen in the gaseous form reacts with oxygen, obviously that will also be in the gaseous form, in the presence of electricity or application of electricity, then what it forms? Hydrogen, when reacts with oxygen in the presence of electricity or on the application of electricity, forms H2O, which is in liquid form. ओके, सो बैलेंस कर देंगे हम यहाँ पर, 2 से किया, इसे भी 2 से किया। ओके, सो नाउ यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, पहले रिएक्शन में सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा था, दूसरे में हीट, तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी। All the three are the form of energy. That's why here the term energy is being used as a general way, okay, in the broader sense. Now let's move towards our next topic. So our next topic is combination reaction. Okay, combination reaction. So what is the meaning of combination reaction? How we are going to understand combination reaction? So let's see. The definition of combination reaction is those chemical reactions in which two or more substances, and in terms of chemistry, I have also explained it earlier that in terms of chemistry, substances are defined as elements or compounds. Okay, so those chemical reactions in which two or more substances combine to form a single product. Okay, so such kind of reactions are called combination reaction. ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब इसे एक जनरल वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक जनरल केमिकल रिएक्शन के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट इमेजिन कि एक एलिमेंट है ए या फिर एक कंपाउंड है, यहाँ पर एलिमेंट या कंपाउंड दोनों हो सकता है, जो कि रिएक्ट कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट या फिर कंपाउंड से। लेट्स सी इट्स बी। ये कॉम्बिनेशन प्रोसेस हुआ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रोसेस हुआ, एंड फिर ये कंबाइन हो गए यहाँ पर ए बी। ठीक है, ए बी फॉर्म कर दिया, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ध्यान रखना है, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है? सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अभी अभी कुछ समय पहले आपको बताया एक एग्जांपल, जब वाटर जो है फॉर्म होता है, वाटर का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, H2 रिएक्ट्स विद O2, यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्रोसेस हुआ एंड H2O फॉर्म हुआ इन द लिक्विड स्टेट। बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सी दैट हाइड्रोजन वन एलिमेंट, ऑक्सीजन द अदर एलिमेंट, combines to form H2O. okay, so it's a combination reaction. Let's see another example. ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में पढ़ाया है, मैग्नीशियम रिबन when reacts with oxygen, burning of magnesium ribbon. Remember, try to recall. Magnesium ribbon burns in the presence of oxygen and forms magnesium oxide, MgO, which is in the solid form. White powder of magnesium oxide is obtained. ये याद रखना है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, मैंने कम से कम तो 4-5 बार इसे बता दिया है। ठीक है, सो मैग्नीशियम विच इज इन द सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म MgO, सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखो जिसमें इस बार कंपाउंड्स रिएक्ट करके फॉर्म। ठीक है, कंपाउंड्स जैसे कि क्या, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड विच इज इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, जिसमें हम अगर पानी डालते हैं H2O in the liquid form, it's a compound, it's another compound, they combine together to form calcium hydroxide. ये मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था, रिएक्शन which will be in the aqueous state. ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस फॉर्म होगा, ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये एक क्या है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। कंपाउंड है, रिएक्ट किया और फॉर्म किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्विक लाइम, इसे कहा जाता है स्लैक्ड लाइम, ये याद रखना है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, H2 reacts with Cl2, chlorine, which is in the gaseous form. So a question can be asked, what is the color of chlorine? कोई बता सकता है?
कलर ऑफ क्लोरीन विल बी येलोइश ग्रीन। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होपफुली स्कूल में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी ना कभी तो पूछा जा ही सकता है। येलोइश ग्रीन क्लोरीन का कलर होता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन इन द गैसेस फॉर्म रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड क्या बनाता है, HCl। ओके, HCl फॉर्म करेगा। क्लियर है, बैलेंस कर दिया रिएक्शन। नाउ एक और एग्जांपल देख लो। आप जितना ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देखोगे आपको उतना समझ में आएगा। कार्बन इन द सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द gaseous form and form CO2 gaseous। ओके, नाउ इतने जो आपको मैंने ये रिएक्शंस लिखाए हैं, आपको कुछ भी कॉमन पता चल रहा है क्या? मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि ये देखो, ये मैग्नीशियम वाला रिएक्शन, इसमें क्या है कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें भी क्या होता है, जब आप चूना में पानी डालोगे और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है, इस केस में भी हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इस केस में भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में भी होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये कंपाउंड आपस में कंबाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आफ्टर द कॉम्बिनेशन प्रोसेस दे आर मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल कहने का क्या मतलब है? मोर स्टेबल कहने का मतलब ही है कि इनकी जो एनर्जी पहले थी, वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन के बाद इनकी एनर्जी कम हो गई है। अब एनर्जी कम हो गई, वो कैसे समझेंगे कि इन्होंने एनर्जी रिलीज की होगी। अब एनर्जी रिलीज की है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर, सिंपल, समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो दोनों ये यहां पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इस केस में भी एनर्जी रिलीज होती है, यू नीड नॉट टू वरी, इस केस में भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो यहां पर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन क्यों कर रहे हैं? टू गेन दिस स्टेबिलिटी। ये जो आपस में कंबाइंड फॉर्म में है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ज्यादा स्टेबल होने का क्या मतलब है कि इनका जो पहले वाला स्टेट था, जो ये एलिमेंटल फॉर्म में है, इधर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। जब ये एलिमेंटल फॉर्म में है, सो इनकी एनर्जी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस कंपाउंड फॉर्म। ओके, यानी कि इस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड की एनर्जी कम है, कम एनर्जी कम है, पहले एनर्जी ज्यादा थी, एनर्जी कम होगी, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ थोड़ा सा दिमाग। क्या होगा, अगर यह एनर्जी ज्यादा है, यहाँ कम है, तो किसी ना किसी फॉर्म में तो एनर्जी रिलीज करेगा ना भाई। सो इसने हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करा है, और ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो क्या यहाँ पर एक जनरल कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक? सो नोट लिख लो, नोट लिखोगे, क्या नोट लिखोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। टूटना है, इसे हिंदी में क्या कैसे समझेंगे, टूट रहा है, सिंपल फॉर्म में टूट रहा है कोई भी कंपाउंड। So let's see the definition of decomposition reaction. So the definition of decomposition reaction is those chemical reactions in which a compound splits up, यानी कि टूट रहा है, into two or more simpler substances by application of heat, light or electricity। यानी कि ये तीन फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, इनमें से किसी एक एनर्जी के एप्लीकेशन से ये टूट रहा है, ठीक है। अब देखो, ये चूंकि डेफिनेशन में ही आ गया है, एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि रिएक्शन प्रोसेस होने के लिए ये जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, इन तीन फॉर्म में से किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सो यहां पर क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, अगर ये कोई भी रिएक्शन अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में अगर कोई भी रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, देन इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इसे क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन।
समझ गए? अगर मान लो किसी रिएक्शन में लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसे कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन। एंड इफ इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन हो रहा है, अगर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्शन, देन इस केस में कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज थ्री decomposition reactions one by one. So let's see some examples of first thermal decomposition. Okay, for example calcium carbonate CaCO3, अभी अभी ये आया था रिएक्शन इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक। सॉलिड फॉर्म में जब ये हीट को एब्जॉर्ब करके टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, इसे कहते हैं लाइमस्टोन, इसे कहा जाएगा क्विक लाइम। क्लियर है? अदर एग्जांपल क्या हो सकता है? लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट इन दी सॉलिड फॉर्म। जब हम इसे हीट करेंगे, यानी कि जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये टूट जाएगा लेड ऑक्साइड में, which will be obtained in the solid form again, and नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ओके, which will be in the gaseous form, ब्राउन कलर, ठीक है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कलर क्या होता है? ब्राउन, एंड O2 गैस। क्लियर है? समझ रहे हो? सो इसका कलर क्या होता है? इसका कलर था कलरलेस। रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? 2 एंड यहां पर भी 2 एंड NO3, यहाँ पे 4। आप चेक कर लेना, ठीक है? सो आई होप ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है। सो क्या होता है इस केस में? जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो लेड नाइट्रेट टूट जाएगा लेड ऑक्साइड में, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स यानी वेपर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, we will not use the term vapors but fumes of nitrogen oxide will be released during this process, and along with this oxygen gas will also be released. Okay, lead oxide का कलर क्या होता है? येलो। सो गाइस, जितना आपसे याद हो सके आप ट्राई करिए, ठीक है? लेकिन केमिस्ट्री को समझना है तो कलर तो भैया ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, जैसे कि H2O which is in the liquid state, जब हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे, ठीक है? तब क्या होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में। क्लियर है? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, 2NaCl इन द लिक्विड फॉर्म। जब हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन करते हैं सो ये टूट जाता है 2Na सॉलिड फॉर्म, एंड क्लोरीन गैस का रिलीज होता है। क्लोरीन गैस का भी अभी कलर मैंने बताया था, येलोइश ग्रीन, ठीक है? येलोइश ग्रीन, ये क्लोरीन गैस का कलर होता है। सोडियम सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रिएक्शन, मतलब जब ये सोडियम का प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, सो इसी रिएक्शन की मदद से होता है। अब देखो यहां पर एक बात नोट करने वाला है कि सोडियम क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। अगर ये वाटर में डिजॉल्व होता, वैसे सोडियम को वाटर में डिजॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ही विगरस रिएक्शन होगा, एकदम तांडव हो जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है। सो लेकिन क्या सोडियम क्लोराइड जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर एक्वस नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कहने का क्या मतलब है? ये मोल्टन स्टेट में है। इट्स नॉट इन डिजॉल्व विथ वाटर, इट इज इन द मोल्टन स्टेट। एंड जब भी सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में होता है तो इसका एक स्पेशल नाम है जिससे कहता है ब्राइन।
When sodium chloride is in the molten state, it is known as brine. Okay, so जब brine पे इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन करेंगे तो सोडियम ऑब्टेन होगा इन द सॉलिड फॉर्म along with the evolution of chlorine gas. ठीक है, अदर एग्जांपल देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना. ओके, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना को एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, और ये रिएक्शन बेसिकली एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है. जब आप ट्वेल्थ में मेटलर्जी पढ़ोगे उस समय ये रिएक्शन आएगा. ये एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन का मेन रिएक्शन है. जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑब्टेन होगा विच इज इन द मोल्टेन स्टेट. एल्यूमिनियम मोल्टेन स्टेट में ऑब्टेन होगा, एंड ऑब्वियसली इसके साथ क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन रिलीज होगा. क्लियर है, ऑक्सीजन विल बी इन द गैसियस फॉर्म. ये क्या होगा, ये होगा, ये भी होगा लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, Al2O3 होगा लिक्विड फॉर्म में. नाउ यहाँ पर एक बहुत ही रोचक बात है, वेरी इंटरेस्टिंग. एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आप आगे पढ़ोगे, ये बस थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ. एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, वेरी स्टेबल कंपाउंड, एंड इसको मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड होता है अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस टू 2200 डिग्री सेल्सियस. एंड नॉर्मली इन द नॉर्मल सिनेरियो आप कोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोक का इस्तेमाल नहीं कर सकते इतना टेम्परेचर पाने के लिए. समझ रहे हो, इतना टेम्परेचर पाने के लिए कोक का इस्तेमाल नहीं कर सकते. एंड एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 660 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो ये जो रिएक्शन है ये पूरा मोल्टन स्टेट में चल रहा है, लिक्विड फॉर्म में पूरा रिएक्शन चल रहा है. जबकि हम नेचर में, ऐसे नेचुरल एटमॉस्फेयर में, एल्यूमिनियम तो सॉलिड होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं, बहुत सारे बर्तन बनते हैं एल्यूमिनियम के, लेकिन जो ऑब्टेन होता है ये मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन होता है. ठीक है, नाउ बेसिकली these are the examples of electrolysis and electrolytic decomposition. Now let's see some examples of photo decomposition. दो छोटे छोटे एग्जांपल्स है, ये भी देख लो, आपके काम ही आएंगे. एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, विच इज इन द सॉलिड फॉर्म. जब हम इसमें सनलाइट देते हैं, या फिर मैं लाइट लिख दे रहा हूं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है, स्प्लिट्स अप इनटू टू एलिमेंट्स, सिल्वर सॉलिड, Ag मतलब सिल्वर, एंड Cl2 गैस, क्लोरीन गैस. कलर अभी अभी आपको बता दिया, याद रखना. सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रेइश व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट. ठीक है, सिल्वर का कलर तो सबको पता होगा. जिंक का कलर क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है मेरा रहा आपकी तरफ, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना. जिंक का कलर क्या होता है. ओके, AgCl का कलर क्या होगा, व्हाइट. जब ये AgCl सॉलिड फॉर्म में होगा, इसका कलर होगा व्हाइट. ठीक है, नाउ अनदर एग्जांपल 2AgBr. जब इस पे भी लाइट देंगे तो क्या होगा, सेम प्रोसेस, ये भी टूटेगा किसमें, Ag सॉलिड एंड ब्रोमीन Br2. So bromine will be obtained in the gaseous form. Okay. Now AgBr क्या होगा, ये तो भाई साहब सॉलिड फॉर्म में ही होगा. AgBr का कलर क्या होता है, येलो. AgBr का कलर क्या होता है, इसका तो अभी कलर बता दिया मैंने. ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन. क्या होता है, रेडिश ब्राउन. केमिस्ट्री की दुनिया क्या है, एकदम बिल्कुल कलरफुल है. ठीक है, अब जो मैंने आपको इतने सारे डाटा इसमें बताए हैं, कुछ कुछ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये ब्राइन वाला पार्ट हो गया, या फिर ये जो कलर्स मैं बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. कोशिश करिए आपके ध्यान में रहे, आपको याद रहे, अच्छा होगा. एंड सो आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं. इस वीडियो में हमने 4 रिएक्शंस को डिस्कस किया है. ठीक है, पहला एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन. अब जो है 4 रिएक्शंस और बचे हैं. 4 रिएक्शंस कौन कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड एक सब हेडिंग आता है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन.
and after that oxidation and reduction reaction. सो इन 4 रिएक्शंस को हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लीजिए या फिर अपना जो डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप हमारी फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो होपफुली आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। सो थैंक यू, गुड लक।